अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम हाजिर हैं जी यूथ वेबिनार सीरीज नंबर 29। जैसा कि आप लोग जो पहले जानते हैं कि इसके ने एक इनिशिएटिव लिया था अपने बल पे, जिसका मकसद था यूथ को कनेक्ट करना, एकेडमी और इंडस्ट्री को कनेक्ट करना। उस हवाले से हम हर महीने एक वेबिनार करते हैं और आज सीरीज नंबर 29 तो मीन 29th वेबिनार है। और आज का टॉपिक हमने चूज किया था आर्ट ऑफ नेटवर्किंग। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, जॉब में है, उनको तो अंदाजा है नेटवर्किंग क्या होती है। बट इसका स्टार्ट हो जाता है जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में दाखिल होते हैं, और जो खास तौर पे जब क्लोज कर रहे होते हैं। नेटवर्किंग एक इन्वेस्टमेंट है, नेटवर्किंग इन्वेस्टमेंट इन योर कैरियर। इट टेक्स टाइम एंड व्हेन डन करेक्टली कैन यील्ड ग्रेट रिजल्ट्स फॉर years टू कम। और इसी हवाले से आज दो बहुत मोहतरम और लर्नेड स्पीकर्स हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस टॉपिक पे आप लोगों को गाइड करेंगे। पहले स्पीकर हैं हमारे साथ मिस साइमा अरशद, जो डिप्टी जनरल मैनेजर एचआर हैं सी सेल में। और Sam Arshad has over a decade of professional work experience across different industries and a multicultural work environment. She excels in developing strength and longevity in relationships with internal and external stakeholders to drive sustainable business success. Her areas of expertise include talent acquisition and development, policies and procedure development, employee engagement, employee branding, HR audit and compliance, HR digital transformation, compensation and benefits, and organizational development. Currently, Ms. Saima holds the position of Deputy General Manager HR at China 3 Gorgeous South Asia Investment Limited, where she leads the complete end-to-end HR function collectively for a portfolio of 13 power projects across 4 countries. Welcome, Ms. Saima. और सेकंड स्पीकर हमारे हैं जी डॉक्टर ताहिर मुमताज अबान, डायरेक्टर चाइना स्टडी सेंटर कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। Dr. Tahir Mumtaz Awan is an assistant professor of marketing at Comstats University Islamabad and head of China Study Center. He holds a PhD in marketing from Sun Yat-sen University, where he is also a senior research fellow at the China Brand Center. Additionally, he is an adjunct associate professor at the School of Business Studies, University of the Witwatersrand, South Africa, and a United Nations Development Program national expert for cross-cutting practices. Dr. Awan has authored nearly 50 academic articles, 10 book chapters, and edited 5 books. He is also the founder of Park China Youth Club and is currently establishing an African Center for Business Studies at a South African university. Welcome, Dr. Saab. थैंक यू। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेटवर्किंग, आर्ट ऑफ नेटवर्किंग, हम तो कॉर्पोरेट में हैं तो हमें अंदाजा है, और आज की जो हमारी ऑडियंस है वो ज्यादातर यूथ है, इसलिए कि अपने बल पे का जो इनिशिएटिव है, जो विच इज द सीएसआर इनिशिएटिव बाय इसके डेवलपमेंट, उसका पर्पस ये था कि यूथ को रेडी करें, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाएं, और सेकेंडली उनको रेडी करें कि जब वो कॉर्पोरेट कल्चर में आते हैं, जॉब्स में आते हैं, तो उनको ये थोड़ा सा अपर हैंड हो कि वो आए तो कुछ सीख कर आए, एटलीस्ट थ्योरेटिकली उनको चीजें पता हो। और हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं इंटर्नशिप्स पे, जो एक आई ओपनर होती हैं, एक एक्सपीरियंस क्रिएटर होती हैं। तो आर्ट ऑफ नेटवर्किंग के हवाले से सबसे पहले मैडम साहिबा, मैं आपको दावत दूंगा कि इस मौजू पे हमारे यूथ को गाइड करें कि नेटवर्किंग या आर्ट ऑफ नेटवर्किंग है क्या और कितना इंपॉर्टेंट है। Thank you very much, Karim for an elaborate introduction and for having me here today. It's a pleasure to be here. Art of networking. So networking basically, it's developing a mutually beneficial relationships. इसमें जो key word है, it's mutually beneficial relationship. I think the one thing जो बहुत ज़्यादा misunderstood है इसमें, and especially when we are the students studying in the universities, हमारा main focus networking का और the purpose होता है that is landing a very good job opportunity. But I believe these professional networks have a lot more to offer than just helping you land a good job opportunity. That may include giving you career counseling advices, helping you with your projects, and of course the referrals and recommendations and all those things. In today's age, it's very important. Even before, we as humans, I believe, we are the social beings. We are not created to live in silos or alone. So we are supposed to interact with people. We have to live in a society. And for that matter, of course, we need to have a good network. For students, in particular, if I talk about them, it's very important for developing that network that they should be clear about, their goals, that where exactly do they want to go,
what are their career aspirations, so that they are able to focus on those relevant people from the industry, to network with, so that they are able to work on that particular group of people that they would like to be a part of. And it's, of course, it is important to be visible in the industry, to build your rapport with those people you'd like to be a part of after you graduate and enter the corporate sector. So yeah, I think that's about it. थैंक यू डॉक्टर साइमा। डॉक्टर ताहिर, आप डायरेक्टर उसमें कॉमर्स में पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट से, बहुत ज्यादा आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन भी होगा, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने उससे समझाएं स्टूडेंट को कि लाइक इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग एक्चुअली, कि जैसे साइमा साहिबा ने उसकी इंपॉर्टेंस बताई, तो थोड़ा सा आप भी गाइड करें प्लीज इस टॉपिक के ऊपर। First of all, Khurram साहब, thank you very much to you, अर्शद साहब को बहुत शुक्रिया, आस्क डेवलपमेंट का शुक्रिया इस इनिशिएटिव के लिए। आई वाज पार्ट ऑफ योर इनिशिएटिव, मेरे ख्याल है शुरू के जब सिंगल फिगर में आपके सेमिनार्स चल रहे थे, आज से कोई 1.5 साल पहले। So this जी, is the second time I am being honored यू आर इन and सेवंथ वन, अब सेवंथ हमारा जो वेबिनार था उसमें आए थे। seventh Anyway, के बाद yeah. मुझे खुशी हुई बड़ी। इनफैक्ट दिस ईमेल वाज थ्रोन टू द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी ने फिर मुझे, अभी मैं चाइना से आपके साथ ऑनलाइन हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिलेगा। अ गुड सक्सेस, माशाल्लाह 79 पीपल आर ऑनलाइन राइट नाउ। अगर हम 3 लोगों को निकाला जाए तो, और चौथा जो आस्क डेवलपमेंट का लोगो मुझे नजर आ रहा है, तो 75 पीपल इन अ वेबिनार, I believe it is a good success. People actually need to learn, and whenever we talk about the students, तो इस वक्त थोड़ा सा शायद कुछ लोग मेरे से इख्तलाफ भी करेंगे, but there are two approaches that are being followed. One is the approach कि जी डिग्री इज नेसेसरी, डिग्री इज रिक्वायर्ड। सेकंड अप्रोच ये है कि जी स्किल बेस्ड पे चले जाए, डिग्री की जरूरत नहीं है। देर आर, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट देर आर फ्यू वाइब्स इन द मार्केट के जी स्किल सीखो, यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। बट ऑन द अदर साइड आई वुड से कि whenever a student finishes his high school and enters in a university in Pakistan or anywhere in the world, he or she might not be able to, I'm not talking about Pakistani students, I'm talking about globally, talking about the student narratives or student mentality. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी पढ़ाने का, ट्रेनिंग्स वगैरह का मौका मिला, तो they have an immature mind, और उनको उस वक्त एक ऐसी फाउंडेशन मिलती है coming in the university where they enlarge their vision. अब जब at the start of the university, when the vision is being enlarged, uh, over my 16 years of career, I have seen that in the mid of the degree, the students start getting frustrated because it is coming to the university, taking the classes, going back home. They don't have anything productive to do. They don't have anything much productive to do. And they make, many of the students, they make it challenging for the teacher to come in the class and teach them. Some of them uh, might have some extracurricular activities to take part in, and some of them, they are too much bookish, or too much you can say into the notes or into the books or into the theoretical aspects. But there comes a stage when they need to experience this real world also. Saima is also here, Three Gorges China ki ek company hai, to the way we are working, the way we are practicing the industry, practicing the theoretical concepts that are being taught in the classrooms, उससे थोड़े से different है. But we cannot say that the foundations can be neglected and industry is the only thing which we have to get. So at that stage, at 5th or 6th semester, the 3rd year, students get exposed to these kind of things, which is actually called networking. And we always take these networking. मैंने आपकी जो ये पोस्टर था वो अपनी सोशल मीडिया पे जब शेयर किया, तो एक टैगलाइन मैंने लिखी थी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ. So that is the stage, that is the place, 3rd year of the students, I believe, is the place from where this network starts building. हमारे यहाँ नेटवर्क को डिफाइन किया जाता है ऐसा कि जी आप कितने लोगों को जानते हैं, आप
कितनी जल्दी किसी सरकारी इदारे से काम करवा सकते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट अप्रोच. When I am talking about the networking from the student's perspective, especially from the perspective of youth, I would say कि how well you can sell yourself in front of your employers. आप फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में यू आर नॉट द वन कि जिसको शायद इंटर्नशिप और सॉरी जॉब की जरूरत होगी, बल्कि आपको एक एक्सपोजर चाहिए मार्केट का. एट दैट टाइम यू डोंट हैव टू थिंक वेयर यू आर गोइंग टू लैंड. एट दैट टाइम यू हैव टू गेट एक्सपोज टू द मार्केट. तो अब उस वक्त मार्केट एक्सपोजर की जब जरूरत होगी, तो चूज योर प्लेटफॉर्म्स वाइजली. आपकी जो स्पेशलिटीज है वो स्पेशलिटीज आपको पता है. वी ऑल्सो कॉल देम KSAs, the knowledge, skills, and abilities. You know them very well, and you have to market them. You have to sell them in front of your employers. So वहां से आपकी networking की, I would say, uh, I would define it that the starting point of your network is that stage. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक नहीं जी, बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। और स्टूडेंट्स को अब मेरे ख्याल में कुछ को एहसास हो रहा है कि जी जो एकदम एक आज से कुछ 3-4 साल पहले आ गया था कि जी डिग्री स्किल इज एवरीथिंग, तो अर्ली कमाना शुरू करना इट्स नॉट अ बैड साइन, बट चक्कर ये कि उसमें आपकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। और वो लोगों को अभी से कुछ लोगों ने सफर करना शुरू कर दिया है, इसलिए कि बेस नॉलेज कुछ नहीं है। ठीक है, वो आप मुख्तलिफ चीजों का सहारा लेके अपने कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं, बट स्किल होना एक बहुत एडिशनल इज एड ऑन। बेस तो डिग्री है, पढ़ना तो पड़ता है। हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स कैन बिल्ड अ नेटवर्क। साइमा, आप इस टॉपिक पे अगर हमें थोड़ा सा कहें कि अभी तो जैसे हमने नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात कर ली, ताहिर साहब के पास भी हम इस पे आते हैं कि आप इंडस्ट्री में बैठी हैं, आप डेफिनेटली आप इस प्रोसेस से गुजर के जा चुकी हैं। आपकी नजर में इसलिए कि नेटवर्किंग जब इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, हम सबके भी अभी हमने बात की यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, इसलिए कि ज्यादातर हमारे इस वक्त ऑडियंस स्टूडेंट्स हैं, इस तरह अपना नेटवर्क बिल्ड करें, कैसे अप्रोच करें, किन किन जगहों पे जाना चाहिए। और राइट नेटवर्क की बात है, इसलिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फोकस उनका रहना चाहिए, फोकस नहीं हटना चाहिए। तो उस फोकस को रखते हुए अपने नेटवर्क को कैसे वो बिल्ड करें। So the first and the foremost thing I'd like to mention here for the university students is that networking doesn't start after graduating. It starts while you are a student and while you are studying at the university. और आपका जो first point of contact, the first, the person you can network is your own professor, your own teacher who's teaching you. And like Dr. Saab has mentioned that you should know how to sell yourself. So to sell yourself, you need to develop that reputation, right? You need to develop that rapport with your teachers, with your professors at the university. That's the first point of contact. I know people personally who were referred for jobs and who got a lot of help from their professors while they were doing their master thesis and a lot of things. So building a good rapport with your professors, I believe, is the key. Apart from that, it's not, I mean, building a rapport with the professors is not only to land a good job, of course. I mean, they can be a very good point of contact for you to to get a career advice, to get, of course, referrals, to get other kind of help also. Another one important aspect जिसको बहुत ज़्यादा I think devalue किया जाता है या शायद उसको उतना effectively use नहीं किया जा रहा is those industry linkages departments that are established in the universities. बहुत सारे students ऐसे होते हैं जो शायद इस चीज़ पर इतना focus नहीं कर रहे थे. These departments are genuinely working, and since I am from the corporate world, I know that we've been approaching those departments to recruit students from those universities. And there is always a chance that the person sitting in that department refer a couple of good students to us. I mean, usually corporate में हमारे पास भी इतनी capacity नहीं होती है, इतना time नहीं होता that we go through the directories and all those things. So we would request them to refer some good students to us. That is a very, very wonderful platform that needs to be used, those departments. Another thing is universities are arranging job fairs and career fairs very often. Har university mein ho raha hota hai. But I have observed while we were students also, and when I was on the other side of the table and I used to go to the job fairs, employers ki taraf se, most of the students are not very taking it, very seriously. Students जो हैं वो आते जरूर हैं job fairs पे और वो जाते हैं companies के booths पे, but वो उनके साथ एक
कोई डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू उस तरीके से नहीं होता, कोई नेटवर्क डेवलपमेंट नहीं होती। एक एम्प्लॉयर अगर जा रहा है तो उसका पर्सपेक्टिव, देयर टू पर्सपेक्टिव्स ऑफ कोर्स, वन इज द एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एंड द अदर इज ऑफ कोर्स रिक्रूटमेंट, इफ नॉट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी इन फ्यूचर. And practically what happens that when we are at the job fair, what we basically do is that when students approach us, jo students genuinely, the bright students who are able to network with us properly, who are able to build rapport, who are able to communicate and sell themselves, so we keep their profiles separate, right? And they are the people who we would refer back to later on when we need the fresh graduates to be recruited, or for the internships, or for the these training management training programs. थैंक यू सर. Another, I जी think, जी जी. one more aspect I would like to mention here, like Dr. Saab said, internships. Internships, all the organizations, I think, in the market currently are offering internships, be it is paid internship or unpaid internship. I would like to suggest कि इस stage पे हमें paid internship को preference नहीं देना चाहिए. Of course, financials matter, but the key factor here should be the organization that you'd like to work with, the organization that matches your career aspirations, and the organization that can add value to yourself, course where you can learn, get the kind of internship that is available, and then utilize that opportunity to network with people in that organization, and of course learn the professional knowledge. So yeah, that is from my side. थैंक यू सैमा. डॉक्टर साहब के पास जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ. मैंने ग्रेजुएशन की थी 1992 में, बीकॉम किया था. उसके बाद मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन करनी थी, तो एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता था किसी अच्छी फर्म के साथ आर्टिकलशिप में. और आजकल भी है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में हूँ. एक बहुत बड़ा इशू है कि ग्रेजुएट्स बहुत ज्यादा हैं, फर्म्स बहुत कम है. इंस्टीट्यूट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जी 6 महीने के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, नहीं तो आपकी वो कैंसिल हो जाता है. तो उस जमाने में जब थर्ड ईयर मैंने पास किया, तो माय फादर आस्क्ड मी टू join a firm as a attorney, just a छोटा, not even a proper attorney, and I did. और उसका फायदा क्या हुआ, मुझे तकलीफ तो बहुत हुई, इसलिए कि छुट्टियां मेरी सारी की सारी जो है ना फर्म में लग गई, बट मुझे फोर्थ ईयर पास करने में बहुत हेल्प हुई. और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस अगले दिन से मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई. तो इवन इतने साल पहले, मतलब 92 की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब कह लें कि 32 साल पहले भी जो थे, वो नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस बहुत थी. और जाहिर बात है उसमें रह के चीजें हुई, आसान हो गई करने के लिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था. अब उस वक्त इतनी इतनी चीजें अवेलेबल नहीं थी कि ईमेल्स और नेट ना होने के बराबर था. तो ये सब चीजें नहीं थी. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जिसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यूथ हमारी, के मेहनत करनी पड़ती है, अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है इन सारे कामों के लिए. कोई आपके घर से आके आपको उठा के नहीं ले जाता. और नेटवर्क बिल्ड करने के लिए भी यू हैव टू डू एफर्ट. आपको एक स्टेप आगे बढ़ के करना पड़ता है. बैठे बैठे ये मत सोचे मैं बैठा हूँ, कोई ना कोई मुझे नेटवर्क में अपने ऐड कर लेगा, चीजें नहीं मिलेंगी. तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है. डॉक्टर साहब, एक तो यही है कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स अपना नेटवर्क कैसे बिल्ड करें, और थोड़ा सा इसको गाइड करें कि प्रोडक्टिव वर्सेस नॉन प्रोडक्टिव नेटवर्किंग. इसलिए स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि जिस तरफ जा रहे हैं कि वो प्रोडक्टिव भी है कि नॉन प्रोडक्टिव है. और नॉन प्रोडक्टिव आपका टाइम जाया करेगी, वो आपको दो दो नुकसान होंगे. एक तो आपका टाइम जाया करेगी, तो सेकंडली प्रोडक्टिव से आपको बहुत दूर ले जाएगी. तो इन दोनों पे कि कैसे स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है, अपकमिंग ग्रेजुएट्स, को कैसे नेटवर्क बिल्ड करें, और प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव नेटवर्किंग में क्या डिफरेंस है, कैसे उससे बचा जाए नॉन प्रोडक्टिव से. इनफैक्ट द एसेंस ऑफ दिस सेमिनार, मेरे ख्याल है, या वेबिनार की अगर बात करें, तो यही चीज है कि हमें ये नेटवर्क, हाउ टू बिल्ड द नेटवर्क. सो 92 की बात की खुरम साहब ने, चले मेरे से थोड़े से सीनियर हैं. अर्ली 2000 की बात करें, 2004 में आई डिड माय बैचलर्स. अभी पुरानी बात हो ही गई है, चले कह सकते हैं. तो उस वक्त वी हैड वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज. वी हैड ओनली दोज रेफरल्स जिनकी बात की है, साइमा ने भी बात की है, कि टीचर ने कहा बेटा वहां चले जाओ, वहां पे मेरा दोस्त बैठा हुआ है, उससे मिल लो जाके, एंड ही विल गाइड यू. और उसके पास जाओ, उसे बंदा चाहिए. उसके बाद ये रिकमेंडेशंस की जो वेटेज है, वो वेटेज किसी तरह से भी कम नहीं हुई. वेटेज जो है वो आई थिंक देयर वाज सम
some notification जी, अगर आपके पास कोई, मेरे ख्याल से if we have some foreign speakers, so do I have to switch to English No, no, permanently? it comes to everyone. It comes to everyone. There was some notification also. जी, लैंग्वेज प्रेफर्ड लैंग्वेज कीजिए, वो सबको यही होगी. तो मैं ये बात कर रहा था कि वो रिकमेंडेशंस, चाहे वो लेट 90s का, अर्ली 2000 का खुरम साहब का और मेरा दौर हो, या अभी रीसेंट ग्रेजुएट्स की अगर बात करें, तो रिकमेंडेशंस दे मैटर अ लॉट. Definitely from a classroom of 30 to 40 students, it varies. At graduate level, we right now in Pakistan, we are having approximately 15 to 25, 30 students, and at undergraduate level, it varies from 40, 45 to up to times more than 100 students. So we cannot remember the names, we cannot remember the profiles of all 100 people. हमें वो याद रहते हैं जो कि 8-10 जो है वो बहुत ही शरारती वाले बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल ना पढ़ने वाले होते हैं, क्लासरूम में डिस्टर्बेंस वाले. और फिर उसके बाद हमें याद रहते हैं वो लोग जो कि टॉप ऑफ द लाइन प्रोफाइल में आ रहे होते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स. यहाँ पर आई डाउट के ऐसे लोग बैठे हुए होंगे कि जो सिर्फ एकेडमिक्स में A+ ग्रेड वाले होंगे. यहाँ पे ज्यादातर वो हैं जो मेरे जैसे, विच आर लाइक अबव एवरेज, or you can say those who are doing both the things, studies and extracurricular co-curricular activities together, and they are more successful, I believe, as compared to those who are bookworms, as compared to those who are totally spoiling themselves negatively in the classrooms. Recommendations की value अभी भी वैसे ही है. Internships की बात हुई है तो internships पेड नॉन पेड दोनों हो रही हैं. मैं इसमें से सिर्फ ये कहूंगा कि इंडस्ट्री को, जहां वो नॉन पेड इंटर्नशिप्स की भी बात करते हैं, तो एक हमेशा से हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट जो मेरा लिविंग एक्सपेंस है वो लिविंग एक्सपेंस जरूर कवर हो. और अच्छी कंपनीज, अच्छी फर्म्स जो है इस चीज की तरफ, इस प्रैक्टिस की तरफ आ चुकी हैं कि जो आपको एटलीस्ट इंटर्नशिप में दे ऑफर यू पिक एंड ड्रॉप, दे ऑफर यू sometimes a little stipend for your daily expenses. But at that stage, when you are not having any major responsibility of your home, तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करें. In case you are not getting a paid internship and you are getting an opportunity to at least learn the practices, learn organizational practices, तो अपने उसको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट समझे. फिर उसके बाद थोड़ा सा अभी जो रीसेंट चीजें जो हमारे शायद मेरे और खुरम की समझ में शायद थोड़ी सी कम आती हैं, बट जूम जो है अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमें सकता ऑनलाइन हुए हुए दुनिया से कोई भी हमें ज्वाइन कर सकता है. अभी वन ऑफ द कलीग्स फ्रॉम अनदर कंट्री, आई गॉट हिज मैसेज कि जी आई एम अनएबल टू ज्वाइन. सो इट मीन्स दैट इट इज अ ग्लोबल अप्रोच नाउ. सोशल मीडिया आ चुके हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां से आप फिल्टर डाउन कर सकते हैं कि कौन सी चीज मुझे मेरे लिए जरूरी है, कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है, कौन सी चीज मेरे लिए बुरी है. पाकिस्तान में इवन इस्लामाबाद पिंडी में जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि मेनली ज्यादातर लोग जो है इस वक्त जो होस्ट है, चले वो हम ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में बेस्ड है, तो इस्लामाबाद पिंडी में आपके पास मल्टीपल सेमिनार्स, मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं. इस वक्त भी अगर देखें तो आपकी सराउंडिंग्स में 2 3 4 इवेंट्स डिफरेंट हो रहे होंगे, एंड दोज आर ऑलवेज ओपन, दोज आर नॉट बाय इन्विटेशन ओनली. उन इवेंट्स की इंफॉर्मेशन आपके पास सोशल मीडिया से आ रही है, आपके पास अखबार से आ रही है, आपके पास ईमेल्स के थ्रू आ रही होगी मुख्तलिफ. बजाय इसके कि आप रेंडमली सब्सक्रिप्शंस करते जाएं, आप जब कोई वेबसाइट खोलते हैं आप उन चीज़ों को सब्सक्राइब करें जिनसे आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. आपको एक दिन पहले नोटिफाई हो गया, गेट प्रिपेयर्ड, लर्न अबाउट व्हाट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दैट स्पेसिफिक इवेंट. फॉर एग्जांपल, आप सीरीना में जाते हैं, सीरीना में कोई इवेंट हो रहा है, पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से हो रहा है, आपके पास यूएस के जो इम्पैक्ट्स हैं उनके हवाले से कोई हो रहा है, देन कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है. इन सब चीज़ों में दे आर मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये इवेंट्स जो होते हैं ये ओपन फॉर पब्लिक होते हैं. दे आर लेस. तो इनमें से आप अपने इवेंट्स जो हैं उनको चूज करें, उन इवेंट्स में जाएं, एंड you should not go only for the sake of going, but you should at least have in your mind that why I am going to spend my 1 hour, 2 hour, 3 hours in that specific event.
The last thing which I would say with regard to productive versus non-productive networking, वो यही है कि आपको खुद से डिसाइड करना है कि जब आप यूनिवर्सिटी खत्म कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री हाफ से ऊपर आपकी जा चुकी है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डिग्री, बैचलर्स डिग्री की बात कर रहा हूँ, तीसरे साल में जाके आपको अपनी डायरेक्शन समझ आना शुरू हो जाती है कि मैंने क्या करना है। तो इस डायरेक्शंस को समझने के लिए या इन डायरेक्शंस को शायद टीचर एक अच्छा गाइड हो सकता है, आपके घर में आपके बड़े बहन भाई हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बट अगेन अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, students at that stage are more comfortable talking with teachers. So make, and those students who are always close to the teacher or who always try to be closer to the teacher, they get some benefits in terms of these kind of recommendations, in terms of these kind of उनको उनको अच्छी जगहों पे भेजा जाता है, टीचर्स भेजते हैं। उसमें सिर्फ don't go for just for the sake of going, but you have to choose whether I am going to invest this time and learn something out of it or not. और प्रोडक्टिव वर्सेस नॉन प्रोडक्टिव का डिसीजन कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। ये प्रोडक्टिव वर्सेस नॉन प्रोडक्टिव यही है कि मैं इस वक्त आपके सामने यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और बिजनेस बेसिकली बिजनेस स्कूल की या बिजनेस की मेरी डिग्री, और मैं अपने आप को अलाइन कर रहा हूँ कुछ थोड़ा सा काम जो है मेरे, क्योंकि चाइना से रिलेटेड है, डिग्री मेरी चाइना से है, तो थोड़ा सा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये 3-4 डोमेन्स है मेरी। अब कल को मुझे अगर कोई इकोनॉमिक्स पे बात करने के लिए कहेगा तो शायद मैं उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करूँ, तो आई शुड एक्सक्यूज माई सेल्फ, I should not just involve myself just for the sake of involving, but I should select which is my domain. और वो अभी से जब आप बैचलर्स डिग्री से स्टार्ट करेंगे ये काम करना, तो फ्यूचर में आपके लिए शायद बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा ये काम करना। There was one person who was raising the hand, so I don't know, खुरम साहब का Yeah, they can ask their question in the chat, इसलिए कि कुछ इश्यूज की वजह से हम लोग स्क्रीन पे नहीं लाते। एक क्वेश्चन है जाहिद साहब का कि मच हैव बीन डिस्कस फॉर स्टूडेंट बट व्हाट अबाउट प्रोफेशन। जाहिद साहब, आज का जो वेबिनार है डेट इज अपने बल पे, ये यूथ सीरीज का वेबिनार है, तो उसमें हमारी ऑडियंस भी ज्यादातर जो है वो यूथ है, इस वजह से हम प्रोफेशनल्स के नहीं करते। एएसके का वेबिनार 29 को इंशाल्लाह, तो इसलिए ये पर्टिकुलरली अपने बल पे सीरीज का वेबिनार है, इसलिए हम प्योरली बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात की, और खास तौर पे प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्ट छोटा सा हवाला दूंगा। पिछले दिन मैं इस वक्त मैं कराची में हूँ, मैं ऐसे लाहौर इस्लामाबाद कराची तीनों जगह पे होता रहता, तो मैं पिछले लास्ट वीक एक टॉक पे गया हुआ था, मुझे इनवाइट किया था लाहौर की एक यूनिवर्सिटी ने। तो उन्होंने थर्सडे का दिन 10 से 12 बजे फ्री रखा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए कि कोई ना कोई स्पीकर आते हैं, किसी न किसी टॉपिक पे बात करते हैं। दो सबसे बड़े जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, जो इज नॉट अ वाइस चांसलर बट प्रिंसिपल उस कैंपस के थे, तो कहते हैं सबसे मुश्किल काम हमारा ये है कि स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना, कि 2 घंटे के लिए लेकर आना है इसको, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं और उसमें फायदा हो जाता है। छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कहाँ से चीजें होती हैं। तो वहाँ जब मैं गया वहाँ, और जिस टॉपिक पे हमारी बात हो रही थी, तो उससे पहले तिलावत कुरान पाक हुई, फिर एक बच्चे ने नात पढ़ी। वो नात इतनी खूबसूरत थी कि आई वॉज लाइक, फ्रेंकली मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी खूबसूरत नात। तो मैंने उनसे कहा कि जी अगर आप कोई नातिया मुकाबला करवाएं तो आई लाइक टू स्पॉन्सर। आप कोई भी नातिया मुकाबला करवाइएगा तो मैं उसको स्पॉन्सर करना चाहूंगा, इसको इसलिए कि 100 चीजें प्रमोट करते हैं, तो वाई नॉट दिस वन। और वो बड़े खुश हुए। तो चक्कर ये होता है कि कहीं ना किसी का फायदा जरूर हो जाता है। तो एक इट्स नॉट डायरेक्टली एकेडमिक बात कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली उस हो सकता है उस बच्चे ने उस फील्ड में आगे जाना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा टाइम लगाएं। हमारी जो सबसे बड़ा डिलेमा है इस वक्त, कि हम लोग जो है वो आगे नहीं कोशिश करते, टाइम नहीं देना चाहते। इतनी ज्यादा चीजों में अपने आप को एंगेज किया हुआ है, टाइम नहीं देना चाहिए। आज ही मैं कोई अर्ट पढ़ रहा था, या तो मेरे ख्याल में यूके में हुआ है कि स्टूडेंट्स पे बैन लगा दिया है कि प्रेमिसेस के अंदर, एकेडमीज इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो मोबाइल यूज ही नहीं कर सकते मजबूरन। क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? मैं मोबाइल इज नॉट अ बैड थिंग, बहुत स्मार्टफोन से आप बहुत कुछ लर्न करते हैं, बट टाइम जाया करने का ना करें। ये नेटवर्किंग फ्यूचर में आप, सबसे पहली बात जैसे डॉक्टर साहब ने कही थी कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सिमिलरली कि नेटवर्किंग जो आपकी अभी है, आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने लिए कर रहे हैं, या आप किसी और के लिए नहीं कर रहे। तो ऐसी चीजों में अपना टाइम लगाएं जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है, और जाएं खाली नॉट टू अटेंड या अटेंडेंस लगवाने के लिए, सीखने के लिए, सुनने के लिए। जब आप, एक बात याद रखिएगा, अगर जब आप क्वेश्चंस करते हैं, कोई सेमिनार हो, कोई वेबिनार हो, स्पीकर आया हो, कोई टॉक हो, जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आप
दूसरे के माइंड में अपने आप को रजिस्टर करवा रहे होते हैं। अगर मैं जाता हूँ रेगुलर, महीने 3 से 4 लेक्चर्स तो देता हूँ, तो जो जिन जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया होता है ना, वो मुझे हमेशा याद रहते हैं। तो कल को वो जब हमारे पास आएंगे इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली कहीं न कहीं अकोमोडेट ज़रूर होते हैं। आपके ज़हन में होता है कि भई हमने एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी के साथ 12 सितंबर को इंटरनेशनल यूथ डे के ऊपर एक हमने सेमिनार किया था, फिज़िकल वर्कशॉप थी, और उसमें जो बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, वी आर सो हैप्पी कि जो स्पीकर्स भी बहुत अच्छे थे और जो क्वेश्चन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन्स से बहुत अच्छे थे। लग रहा था कि बच्चों ने सुना है और वो रजिस्टर होता जा रहा था कि ये दीज़ आर द पीपल, तो वो कल को आते हैं किसी इंटरव्यू में, तो दे विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर अस। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने वेबिनार को। साहिबा, आपके पास मैं आऊंगा। स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेसफुल नेटवर्किंग, हमने बात कर ली कि प्रोडक्टिव होना चाहिए, हम उन चीजों पे टाइम करें। अब एक स्टूडेंट है और वो राइट ना उसको ये समझ आ गया कि जी नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बेनिफिशियल है, उसने टाइम देना है, बट उसे फिलहाल समझ नहीं आ रही क्यों, हर जगह गाइडेंस नहीं है। जैसे आपने कहा था कि जो स्टडी सेंटर्स हैं या स्टूडेंट अफेयर्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बनना शुरू हो गए। कुछ जगह बन गए हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, कुछ जगह बन गए इफेक्टिव नहीं है, कुछ जगह भी बने ही नहीं। तो जहाँ अच्छे चल रहे हैं उनको बड़ी गाइडेंस है। और अभी डॉक्टर ताहिर ने जैसे बात की कि टीचर से लोग बात करने में स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होते हैं। जस्ट हम एक बात करते हैं इसलिए कि हमारी ऑडियंस ओवरऑल पाकिस्तान में फैली हुई है, कि ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इस चीज़ का फोकस नहीं है, या आप कह लें कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वहाँ की जो फैकल्टी को भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों के बारे में। कैसे स्ट्रेटेजाइज करें सक्सेसफुल नेटवर्किंग के लिए, या इवन नेटवर्किंग के लिए? स्टूडेंट्स हैं, हम वो कहेंगे जी ठीक है, आप हमने आपकी बात समझ ली, तो हाउ टू मेक स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेसफुल नेटवर्किंग और इवन नेटवर्किंग, इसको थोड़ा सा आपके साथ प्लीज इसको कीजिए। So, देखिए इस वक्त everything has gone online, right? जैसे हम कहते हैं the world is a global village, and जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा that Zoom is something that is now available after COVID, and now everything is happening online through Zoom. Even during COVID 3 साल हमने work from home किया था, and all the interaction was through Zoom with our peers and seniors and everybody. Um, LinkedIn is such a powerful tool. The social media websites that are available, instead of just scrolling it all the time, otherwise भी students use कर ही रहे होते हैं, सब हम use करते हैं social media, तो उसका एक effective use भी है, and I think उसको realize करने की जरूरत है. LinkedIn is a very very powerful tool, although उसको उतना effectively बहुत सारे लोग use नहीं कर रहे, and it has more of a become Facebook now, but still अगर आप उसको एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एम्प्लॉयर्स आर स्टिल यूजिंग लिंक्डइन टू रिक्रूट पीपल. वहाँ पे हमारी इंटर्नशिप्स भी एडवर्टाइज होती हैं, वहाँ पे हमारी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी एडवर्टाइज होते हैं, वहाँ पे ही आपके जो हैं डिफरेंट सेमिनार्स, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस भी एडवर्टाइज हो रही होती हैं. all the organizations, all the good organizations, even small scale organizations, they have their presence over the LinkedIn. ठीक है, उनके पेजेस बने हुए हैं, they advertise their things over there or on their social media pages. So, but contrary to that, students का जो हम जब नोटिस कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स की या तो प्रोफाइल्स एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर तो वो एग्जिस्ट करती हैं तो लिंक्डइन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट यूजिंग लिंक्डइन वेरी इफेक्टिवली. प्रोफाइल बना के और बस उसको छोड़ दी है, बट उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज नहीं कर. So I think that online presence on LinkedIn and utilization of that platform effectively is very very important. जो organization जो आपको लगता है कि आपके future, आपके career aspirations से link कर रही हैं, follow those organizations and follow those platforms जो आपके career से relevant है. For instance, अगर मेरा HR का domain है, तो HR की डिफरेंट जो इस वक्त बॉडीज एचआर से रिलेटेड मार्केट में अवेलेबल हैं, सो आई बी फॉलोइंग दोज पेजेस, और उनकी जो भी एक्टिविटीज होंगी वो वहाँ पे एडवर्टाइज हो रही होंगी, एंड आई विल गेट द अपडेट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. So even if your university does not have that particular industry linkages department available, तो आपके पास out of the university भी बहुत सारी opportunities available हैं. Those opportunities can be leveraged. पर अगेन अब स्टूडेंट्स को पता है कि उन्होंने नेटवर्क करना है, अब उनको पता है कि कुछ मार्केट में अवेलेबल है, देयर आर सेमिनार्स हैपनिंग और देयर आर अदर एक्टिविटीज हैपनिंग, बट वंस यू गो देयर, नेटवर्क इज नॉट समथिंग जिसको ओवरनाइट बिल्ड किया जा सकता है. वी हैव सेड इट अगेन एंड अगेन दैट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड इट रिक्वायर्स एफर्ट and it requires rapport building with people, and then we need to improve our visibility also. ऐसा नहीं है कि आपने साल में एक networking event attend किया या कोई एक seminar attend किया and then that's it.
और उसके बाद हम जो है 1 साल या 6 महीने के बाद दोबारा एफर्ट करना शुरू करेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ कांस्टेंट एफर्ट। और अपनी विजिबिलिटी इम्प्रूव करें, बी इट ऑनलाइन or be it your physical visibility in the market in terms of attending the conferences, seminars, or not all of these conferences or seminars are highly paid, या उनकी कोई इतनी heavy fee नहीं होती। There are free events also in the market जो कि हो रहे होते हैं। So I think that could be another opportunity. थैंक यू सो मच। एक और चीज थी मुझे, अब डॉक्टर ताहिर साहब थोड़ा ज्यादा हमें बेहतर गाइड कर सकेंगे। सोसाइटीज होती थी, अभी भी होती है, मेरा बेटा, छोटा बेटा भी लम्स में पढ़ता है, तो वहां पे वो 2 सोसाइटीज में है। तो सोसाइटीज बड़ा रोल प्ले करती हैं उनको कनेक्ट करने से। उनकी इवेंट्स होते हैं, उनके प्रोग्राम्स होते हैं, उनके हवाले से कोई रिसर्च होती है तो वो जाते हैं इंडस्ट्री मिलने के लिए। डॉक्टर साहब, जनरली इस वक्त क्या ट्रेंड है, क्या सोसाइटीज हैं यूनिवर्सिटीज में इफेक्टिव? इसलिए कि उसमें फिर वही बात होती है कि स्टूडेंट्स को टाइम देना पड़ता है, बट उससे फायदा बहुत होता है। मुझे याद है कॉमर्स सोसाइटी हुआ करती थी जब मैं था, तो मैं उसका प्रेसिडेंट था। तो हम लोग जाते थे, हम लोगों को बुला के लाते थे, मुख्तलिफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने कॉलेज लेकर आते थे। एक वंस अ मंथ हमें एक लाजमी उसका सेशन करवाना होता था। तो उस चक्कर में जाहिर बात हम भी निकलते थे, लोगों को भी इनवाइट करते थे, स्टूडेंट्स को भी लोगों से मिलने का मौका मिलता। अब नाम तो सुनता हूँ, तो क्या सोसाइटीज, जो स्टूडेंट सोसाइटीज होती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, इन चीज क्या ये अभी हैं इफेक्टिव? क्या ये फायदा देती हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप नेटवर्किंग बढ़ा सकें, और स्टूडेंट्स को क्या इसके अंदर आना चाहिए? जी, खुरम साहब, आपने अपनी मिसाल दी है। मैं थोड़ा सा अपने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम मुझे भी याद आ गया है। मैंने ICBN जी, मैं ओके। शाम कॉलेज से पढ़ा हूँ। तो कुछ ऐसी चीजें थी जिन जो अभी भी दे आर क्लियर इन माय माइंड। दे आर स्टिल, इफ आई क्लोज माय आईज, तो मैं उनको दोबारा विजुलाइज कर सकता हूँ। इसमें एक बहुत बड़ा नाम ICB हाइकिंग क्लब का था, जो बाद में एडवेंचर क्लब के नाम से चेंज हुआ। ड्रामेटिक सोसाइटी होती थी, इस्लामिक सोसाइटी हुआ करती थी, फिर ड्रामेटिक्स क्लब होता था, सॉरी। तो ये 3-4 ऐसे क्लब थे जिनकी फाउंडेशंस तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन जिनके एग्जेक्टिव पोजीशंस तक मैं खुद भी रहा हूँ। उन चीज़ों को फिर अपनी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस करने का शायद थोड़ा सा कम मौका मिला, बिकॉज आई स्टार्टेड माई कैरियर एट द एंड ऑफ माई बैचलर्स डिग्री। इनफैक्ट मैंने 3rd ईयर जब मैं ख़त्म कर रहा था, तो उस वक्त मैंने अपना प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट कर लिया था। और बाय द एंड ऑफ माई बैचलर्स डिग्री, आई हैड माई ऑफिस इन ब्लू एरिया। किसी वजह से उस ऑफिस को बंद करना पड़ा। आई स्टार्टेड माई बिजनेस। जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो उस वक्त मैं 6 महीने बाद बिजनेस चला चुका था। आई एम टॉकिंग अबाउट माई बैचलर्स डिग्री। और उस बिजनेस को मैंने 2 साल तक मैंने कंटिन्यू किया। ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आई हैड टू क्लोज इट डाउन। फिर नौकरी की तरफ आना पड़ा। एंड आई हैड नेवर बोरोड अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीवन इन स्टार्टिंग दैट बिजनेस। एट दैट टाइम 2003 की अगर मैं बात करूं, तो ब्लू एरिया में ऑफिस होना वाज अ प्रेस्टीज, आप कह सकते हैं। तो वो ब्लू एरिया में ऑफिस रखा मैंने 2 साल। आई हैवंट इवन बोरोड मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स एट दैट टाइम। तो इस चीज को अगर आप देखें, तो शायद वो सोसाइटीज के अंदर, अगर आपको जो रियलिस्टिक किस्म की चीजें होती हैं, जो चीजें आप क्लासरूम के अंदर मिस कर रहे होते हैं, वो आपको वहां पे सीखने के लिए मिलती है। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से मैं एफिलिएटेड हूँ, पिछले कोई तकरीबन 16 साढ़े 16 साल हो चुके हैं। तो इसमें 3-4 सोसाइटीज ऐसी हैं जो बेस से बनाई मैंने। इस वक्त भी हमारी कॉमसेट्स की जो पॉलिसी है वो ये है कि ऑल द इवेंट्स आर बीइंग मैनेज्ड बाय द स्टूडेंट्स। और वो स्टूडेंट सोसाइटीज जितनी भी हैं, उसमें एक फैकल्टी मेंबर या समटाइम्स 2 फैकल्टी मेंबर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं। देयर नेम इज ऑन द एडवाइजरी पैनल ऑफ द सोसाइटी और क्लब। लेकिन उसके जितने भी प्रेसिडेंट, ऑफिस बेयरर्स, वाइस प्रेसिडेंट, जितने भी ऑफिस बेयरर पोजीशंस होती है, वो सारी स्टूडेंट्स के पास होती है। और फैकल्टी जो है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ परमिशंस पे साइन करना है, सिर्फ पिक्चर में रहना है कि क्या हो रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स है, उनके थ्रू स्टूडेंट्स को गाइड करना है। जब प्रैक्टिकली काम करने की बारी आती है, चाहे वो कोई सेमिनार अरेंज करना हो, चाहे वो कोई लेजर एक्टिविटी है, चाहे वो कोई टूर अरेंज करना है, वो सब स्टूडेंट्स कर रहे हैं।
बीम्स के नाम से एक क्लब मैंने कॉमसेट्स में बनाया आज से 3 साल पहले। बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सोसाइटी के नाम से था जी। ये पाकिस्तान चाइना यूथ क्लब जो है वो इस्टेब्लिश किया आज से 2 साल पहले। देन मौसीकी के नाम से एक सोसाइटी थी, उसके एडवाइजर में रहा। अब ये सारी वो है जो हमारे पास लोकल एग्जांपल्स हैं। हम इन सारे नामों को शायद अगर यहाँ पे कोई कॉमर्स के स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो शायद वो जानते हो, बट द बिगेस्ट एग्जांपल वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज आई ट्रिपल ई के साउथ एशिया चैप्टर, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट सोसाइटी का मैं साउथ एशिया चैप्टर का एडवाइजर रह चुका हूँ। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो शायद लोकल लेवल पे तो आपको बेनिफिट दे ही रहे हैं, लेकिन आई ट्रिपल ई का अगर आप हिस्सा बनते हैं, इंजीनियर्स आई ट्रिपल ई को ज्यादा बेहतर समझते हैं। आई ट्रिपल ई का आप हिस्सा बनते हैं, ये टेम्स जो सोसाइटी है जी, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट सोसाइटी, दिस इज अगेन फॉर द सोशल साइंसेज पीपल ऑल्सो। सो ग्लोबल आपको रीच मिलती है, मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स हो रहे होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट्स हो रहे होते हैं। फिर ऐसी सोसाइटीज हैं जो कि आपके लोकल इवेंट्स को उठा के रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे होते हैं। इसमें इसमें कुछ ऐसे नाम है जो अगर कोई स्टूडेंट आपका यहाँ पे जो अटेंड कर रहे हैं वो लोग वो जानना चाहें, उनके प्लेटफॉर्म्स को मैं यहाँ पे बाद में उनके साथ डिटेल उनके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। इन सोसाइटीज से आपको वो एक्सपोजर मिलता है जो एक्सपोजर आपको इंडस्ट्री में एंटर होते साथ ही आपको मदद देगा। आपको वो चीजें जो हम क्लासरूम में बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टाइम हम नहीं सिखा सकते वो चीजें होंगी। बट अगेन यहाँ पे ये बात खत्म करते हुए सिर्फ साइमा की बात में एक चीज ऐड करूंगा, और मेरा ख्याल है इस चीज पे ये ऑल्दो खुरम ने मेरे से ये सवाल नहीं पूछा था, बट आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ, दैट्स वाई मैं ये बात कर रहा हूँ कि प्रोफाइल्स जो आप बनाते हैं, प्रोफाइल्स बनाएं जरूर, लेकिन मेहरबानी करें अपने ईमेल एड्रेसेस को सेंसिबल किस्म के ईमेल एड्रेसेस लिखें। रेड रोज इन द रेन एट gmail.com, इस तरह के ईमेल एड्रेसेस जब आपका एम्प्लॉयर देखेगा आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, वो नहीं खोल के देखेगा उसको। आप जब अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हैं तो उसको शादी की किसी स्क्रीनशॉट किसी सेल्फी को प्लीज क्रॉप करके ना लगाएं। अपनी एक सेंसिबल किस्म की तस्वीर लगाएं। लिंक्डइन के ऊपर लगाते ठीक है, फेसबुक की हद तक ठीक है, मैं उससे एग्री करता हूँ। फेसबुक पे मेरी भी तस्वीर थोड़ी सी आप कह लें कि नॉन प्रोफेशनल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ी सी इनफॉर्मल काइंड की है। ऑल्दो टू मी इट इज वेरी फॉर्मल बिकॉज मेरी पीएचडी की ग्रेजुएशन की तस्वीर है जी। बट पीएचडी की ग्रेजुएशन की तस्वीर आपके सीवी पे नहीं लगी हुई होनी चाहिए। गाउन पे जो आपने तस्वीर लगाई है वो सीवी की तस्वीर नहीं है, सीवी पे आपकी एक एक इंसानों वाली तस्वीर चाहिए। विद ड्यू अपॉलॉजी फॉर दीज वर्ड्स। देन आप कवर पेजेस लिखना सीखे, आप सीवी अपने को ट्रिम करके अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर आप उसको भेजे। आप ये नहीं है कि एक सीवी आपने बनाया है जो कि 1918 में एक टेम्पलेट बनी थी, उसी टेम्पलेट को आपने कॉपी किया, उस टेम्पलेट के अंदर बहुत सी चीजें डाली और वो चीजें जो नहीं चाहिए वो भी डाली, और आपने आपने उसको एम्प्लॉयर को भेज दिया। हर एम्प्लॉयर के लिए सीवी को आपको थोड़ा सा रीशेप करना पड़ता है। जस्ट वन लाइनर के जी मैं अब दो ब्रॉड डोमेन है जिनमें मैं काम कर रहा हूँ, एक मेरी टीचिंग है और दूसरी मेरी रिसर्च है। जब मैंने किसी रिसर्च की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मैं सिर्फ अपने रिसर्च के सेक्शन को उठाता हूँ, उठा के उसको अपने फर्स्ट पेज पे ले आता हूँ या सेकंड पेज पे ले आता हूँ। फर्स्ट पेज पे अगेन देयर इज सम अदर थिंग्स दैट आई हैव टू राइट। लेकिन जब मैंने टीचिंग के लिए अप्लाई करना है तो कोई कोई टीचिंग वाला उसको रिसर्च से शायद लेस कंसर्न है, वो उतना ज्यादा उसका कंसर्न नहीं है, तो मैं टीचिंग वाली चीज को पहले ले आऊंगा। सो अपने सीवी को मिक्स एंड मैच करें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। एड को पढ़ लिया करें, जो रिक्वायरमेंट्स अगर किसी एम्प्लॉयर ने आपके लिए 2 सफ़े 2.5 सफ़े लिखे हैं तो उसको पढ़ लिया करें कि ये एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर क्या चाह रहा है। हम अक्सर जो रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉर द प्रोफाइल या रिक्वायरमेंट्स फॉर द कैंडिडेट होते हैं वो पढ़ते ही नहीं। हम ये सिर्फ देखते हैं कि सीवी भेजना है, कवर लेटर भेजना है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, खुदा हाफिज वो सेट कर देते। हम इवन इतना बॉदर नहीं करते कि जो ईमेल है उसकी बॉडी में कुछ लिख ले। मेरे पास कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं जो मैं मुख्तलिफ अपने सेशंस में इस्तेमाल करता हूँ, अगर आप लोग वो देखना चाहेंगे। मैंने नाम ब्लर किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस किस्म के ब्लंडर्स जो है हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। साइमा इस तरह के ब्लंडर्स ज्यादा देखती है, मैं भी मुख्तलिफ
I जगहों would पे, like to add something to it once you are done. मुख्तलिफ जगहों पे मैं जिस तरह खुरम बता रहे थे कि जी हम मांगते हैं, टीचर से रिकमेंडेशन मांग रहे होते हैं, साइमा ने ये बात की थी। तो बहुत से ऐसे इदारे हैं, बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त सीनियर पोजीशन पे बैठे हुए हैं और वो कॉल करके सर ये कहते हैं सर कोई अच्छा बच्चा हमें भेज दे। सो एट दैट टाइम अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आप अपनी तो वो अपने आप को तो खैर डिग्रेड कर ही रहे हैं, आप वो लोग जिन्होंने पढ़ाया है उनको भी डिग्रेड कर रहे होते हैं। ऐसे ऐसे ब्लंडर्स हैं जो कि मैंने एग्जाम्पल्स के लिए बाकायदा पावर पॉइंट स्लाइड्स बना के रखी हुई हैं। जब मैं मुख्तलिफ जगह पे ट्रेनिंग्स के लिए, मुख्तलिफ सेशंस के लिए जाता हूँ तो मैं लोगों को बताता हूँ कि ये काम प्लीज ना करें। जी जी सॉरी। साहिबा। डॉक्टर साहब ने सीरीज और पिक्चर्स की बात की है, तो आई रिसेंटली रिसीव्ड फ्यू सीरीज, वी वर शॉर्टलिस्टिंग फॉर अ पोजीशन। तो उसपे जो पिक्चर थी वो उल्टी लगी थी, ठीक है। एंड आई वाज अमेज्ड टू सी दैट द स्टूडेंट एक्चुअली सेंट द प्रोफाइल विदाउट इवन लुकिंग एट इट वंस। जो आपने सोसाइटीज की बात की है, आई लाइक टू जस्ट ऐड वन थिंग टू इट कि सोसाइटीज में आपने कहा कि स्टूडेंट्स की पोजीशंस जो हैं उनकी president की position and the other office bearers की positions. I actually graduated from ComStats. I did my BBA from there, so I was a part of a couple of societies over there. So I know how those are working. Ab to khair situation has changed a lot. So these societies, being part of these societies, actually help students develop their skills. Otherwise, आपकी development में इतना helpful होता है. It develops your confidence. It develops your social skills. It develops your decision-making skills. Okay, and then of course it expands your network also, चाहे वो within the university or outside university. And these are the skills that the employers are looking for, and these are the skills जो कि later on आपको of course help करते हैं when you are there to sell yourself to the employer, or when you are there to interact with people in the market for the purpose of networking. So, जी थोड़ा सा जस्ट टू ऐड के ये इसके इसलिए कि हम थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट 7,000 प्लस लोग हमारे पास हैं, तो मुस्तकिल इंटरव्यूज चलते रहते हैं। तो मैं यूथ को बताना चाहूंगा, मैं हर दफा अपने जो सेशन बताता हूँ कि आप आजकल जो कीवर्ड्स होते हैं जो जॉब एडवर्टाइजमेंट में होते हैं, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट देम इन योर सीवी। क्यों? अगर एक पोजीशन 10 पोजीशन है उनके लिए 6,000 सीवीज भी आ जाते हैं, तो एआई का इस्तेमाल किया जाता है उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए। जैसे कि 6,000 सीवीज को, तो उसमें अगर वो रेलिवेंट वर्ड्स नहीं है जिनकी जॉब आई है, आपने बस अब एक ही सीवी बनाया, और 90% जब हम इंटरव्यू में कोई पहुंच जाए और उसमें सीवी में वो कोई ब्लंडर्स हो तो कहते हैं जी कजन ने बनाया था, या वो सॉरी हम अपडेट करना भूल गए थे। भाई अपडेट कर लें आप, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपका कवर पेज है। जैसे डॉक्टर साहब ने तस्वीर की बात की, तो सीवी आपको आपसे पहले सीवी आपका पहुंचा है, तो जरूर देखें यार, इसलिए कि अदरवाइज अगर सीवी ऑफ होगा या उसमें इंफॉर्मेशन गलत होगी या इरेलीवेंट होगी, या ये कहना कि जी आप पढ़ लें कि जॉब की पे कितनी है, जॉब हो जाती है, आप थर्ड इंटरव्यू में जाके कहते हैं जी हमने तो इतने पैसों की जॉब करनी थी, हम तो अप्लाई नहीं किया, हमने अप्लाई किसी और काम के लिए किया था। तो जरूर देखें कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कितने पैसों की है, आपको कोई कंपल्शन नहीं है, वर्थ हो तो करें, नहीं हो तो ना करें। लास्ट उस पे चलते हैं। आयशा रफीक साहब, आपको क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ सकती हैं, हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, हम लाइव अलाउ नहीं करते। नेविगेटिंग नेटवर्किंग चैलेंजेस, नेटवर्किंग बन गए, कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क्स में लोग आ जाते हैं, ओवर कमिट कर लेते हैं, चीजों को ओवर कमिटमेंट हो जाती है, तो ओवर कमिटमेंट से नुकसान ये होता है कि फिर पजल हो जाते हैं, फटीग में आ जाते हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पहली बात है आस्ते आस्ते एज के साथ सब मेच्योरिटी आती है, तो ओवर कमिट कर लेते हैं, वो 3-4 सोसाइटीज में चले गए, मुख्तलिफ ओवरऑल एक जर्नल चीजों बहुत ज्यादा चीजें स्टार्ट कर देते हैं। तो हाउ टू नेविगेट नेटवर्किंग चैलेंजेस जब चीजें आती हैं, खासतौर पे एटीट्यूड इश्यूज आ जाते हैं, आपको बर्डन आ जाता है कि जी जो जिस नेटवर्क में मौजूद हैं, कभी कभी आपको थोड़े से वो कर दिया जाए, साइडलाइन कर दिया जाए, या आपको लग रहा है कि जी आपको उस तरह अप्रिसिएशन नहीं मिल रही या एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही। ऐसे चैलेंजेस को सैमा और डॉक्टर साहब दोनों को बारी बारी करते हैं, उसके बाद हम सिर्फ 9 मिनट रह गए हमारे पास, तो इसको दोनों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, पहले सैमा से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैसे नेटवर्किंग चैलेंजेस को नेविगेट किया जाए। first thing, over commit कर लेते हैं, and so attitude issues like you said आ जाते हैं, these things. The first thing and the first and the foremost thing is be yourself, right? Who you are, you know your personality, you know your temper, you know your behavior. अपने आप पे काम करें, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करें, but you know yourself, so you know
stand by your words, whatever you are committing. ज्यादा सोसाइटीज में चले गए हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ एटीट्यूड इश्यूज आ जाते हैं, सो दैट इज द प्लेस जो कि आपको डेवलप करने के लिए ही है। जो मिस्टेक्स आपने आगे करियर में आके करनी है, वो मिस्टेक्स वहाँ सोसाइटीज का पार्ट बन के, और यूनिवर्सिटी पे जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है वहीं पे वो मिस्टेक्स करें और उनसे लर्न करें एंड करेक्ट योर सेल्फ एंड देन डेवलप दो स्किल्स जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप लैक कर रहे हैं। एटीट्यूड इश्यूज, बिहेवियरल इश्यूज तो आगे जाके करियर में भी आएंगे, but if you have a temper problem, if you have issues with your social skills, या आपकी decision making का issue है, या आप over commit कर रहे हैं and you don't know your boundaries, right, where you're supposed to stop, then this is, the university itself is a platform where you have to learn all these things. आप mistakes करते हैं और फिर आप सीखते हैं. um, yeah, I think that's ठीक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तो सर मैं अपने जो 2-3 क्लब्स की मैंने बात की थी, उसमें मैं एक छोटी सी चीज जो इस तरह के प्रॉब्लम्स को फिल्टर आउट करने के लिए मैंने की हुई थी स्टूडेंट्स के लिए, वो ये था कि मैंने व्हेन यू आर एन ऑफिस बेयरर्स, जो कि वो 15-16 पोजीशंस होती थी, तो यू हैव टू इंश्योर मी कि आप किसी और सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, नॉट इन अ मेंबरशिप कैपेसिटी, इन ऑफिस बेयरर कैपेसिटी, कि जी आप अगर ऑफिस बेयरर की पोजीशन मेरी सोसाइटी में या मेरे क्लब में आपके पास है, तो you, if you are having another position in any other office bearer position in any other society, you have to quit either my club or that club. तो वो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो फिल्टर आउट हो जाते थे वहां पे। बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने मेरे पास काम करने से इनकार किया और उन्होंने कहा जी नहीं, मैं इंटरेस्ट मेरा दूसरी तरफ है। अब एक और छोटी सी एग्जांपल है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिनको शायद कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का या गाना गाने का शौक होता है, तो जिस तरह से आपको पता लग जाता है कि मैं गाना नहीं गा सकता, मैं अगर गाना गाऊंगा तो आपके इस वक्त 84 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे बैठे हुए, उसमें शायद 4 रह जाएंगे। साइमा शायद बर्दाश्त कर ले, आप बर्दाश्त कर ले, आर्ट्स डेवलपमेंट के लोगों वाले लोग बर्दाश्त कर ले, बाकी सारे भाग जाएंगे। मैं नहीं कर सकता। आई नो माई सेल्फ। इसी तरह से आपको वो चीजें पता है जो आप कर सकते हैं, वो चीजें पता है जो आप नहीं कर सकते। देयर वॉज अ वर्ड, इनफैक्ट 2 वर्ड्स यूज्ड बाय साइमा के जी एटीट्यूड और इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये एटीट्यूड और इमोशनल प्रॉब्लम्स को उसी तरह से समझें कि जैसे मैंने ये गाने की एग्जांपल दी है। If you are not an outgoing person, if you are not someone who can do some physical, जिसको हम भाग दौड़ कहते हैं, तो आप क्यों ऐसी सोसाइटी में या किसी ऐसी सोसाइटी के उस स्पेसिफिक सेक्शन में जाते हैं जहां पे आपको लॉजिस्टिक्स का काम करना पड़े? इफ यू आर नॉट एन आउटस्पोकन पर्सन, व्हाई यू हैव जॉइंड, लेट्स से स्पॉन्सरशिप्स की आपको टीम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? आप उससे बेहतर है कि आप बैक स्टेज जो अरेंजमेंट्स है वो अरेंजमेंट्स वाली आप टीम में चले जाए। तो नो योर स्किल्स, नो योर एबिलिटीज, जो आप काम कर सकते हैं, एंड पुल आउट योर सेल्फ एज सून एज पॉसिबल इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल फ्रॉम एनीथिंग। किसी भी चीज से, कोई भी चीज, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो आपकी नेटवर्किंग की किसी भी जनरल एस्पेक्ट से हम बात करें, कोई भी चीज है, पुल योर सेल्फ आउट एज सून एज पॉसिबल, रादर देन के थोड़े अरसे बाद आप कहें यार मैंने बहुत टाइम जाया कर लिया, मैंने बहुत अपनी चीजें जो है वो शायद मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। आई वुड से एट दिस स्टेज, जब एनर्जी इज एट द हाईएस्ट लेवल, स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, so there is always something which is being said by parents also, which is said by most of the teachers also, कि जी nothing is impossible. तो आई वुड से कि इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दें। बहुत सी चीजें जो कि शायद पॉसिबल नहीं होती, बहुत सी चीजें जो है वो इम्पॉसिबल, नॉट इन द सेंस दैट यू कैन नॉट डू देम, इम्पॉसिबल इन द सेंस दैट they might not be your cup of tea. So understand what you have to do, understand what is your plus point, what is your positive point, और उस पे काम करें। I tried working maybe in an administrative side and I failed, but I, यहाँ पे अभी अगर खुरम इजाजत दे तो मैं शायद सारी रात यहाँ पे लोगों को बिठा सकता हूँ। I am the one who is kind of like वो social animal वाला जो word हम You अक्सर can engage people there. with your experiences, with your time, आपको ये चीजें खुद समझ आ जाती है कि आपको क्या चीज पसंद है। सो इफ यू आर पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर ना बने, आप अच्छे कामों की तरफ जाए। मोटिवेशनल स्पीकर से थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है जी।
कम काम करें बट मुकम्मल करें, जैक ऑफ ऑल बनने की जरूरत नहीं है। आप दो सोसाइटीज में हो और आपने उसमें कुछ वैल्यू ऐड की हो, दैट इज मोर देन अनफ। इंस्टेड कि आप सिर्फ नाम पूरा करने के लिए 10 सोसाइटीज का नाम लगा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होता। क्यों? जो आता है यहाँ पे आती है वो बात के डिग्री के साथ स्किल, आप स्किल डेवलप हो रही है आपकी, एड ऑन है, वो एडिशनल है। वैल्यू एडिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन जी, एक क्वेश्चन आया हुआ है आयशा रफीक साहिबा का। मैं आपसे पूछ लेता हूँ सायमा, वैसे तो आई थिंक सो इट्स जनरल जनरल थिंग है। कैन यू हाईलाइट हाउ फीमेल्स शुड गो फॉर नेटवर्किंग? Same for male and female, I guess. I mean, LinkedIn की अगर बात कर रहे हैं तो females should also have an online presence. अगर हम seminars की बात कर रहे हैं तो females are also supposed to attend the seminars and the job fairs. And अगर हम professors और teachers के साथ एक repo building की बात कर रहे हैं and being part of any societies in the university or taking part in the voluntary activities, so the females are also supposed to be a part of all these things. So, I mean, I don't see कि males के लिए कोई platforms available हैं और females के लिए कोई available है. So, I think it's same for all. एग्जैक्टली सेम थिंग। एंड डॉक्टर साहब, आयशा का ही क्वेश्चन है कि जी सीवी या रिज्यूमे, हम क्या ऑप्ट करें? सीवी बनाएं या रिज्यूमे बनाएं, और किस किस कंट्री का फॉर्मेट जो है हम फॉलो करें रिज्यूमे के लिए? देखें, नोबडी विल सी कि आपने उस पे मेहंदी के डिजाइन बनाए हैं, विद ड्यू अपॉलॉजी फॉर दीज वर्ड्स, या आपने गुलाब का फूल बनाया हुआ है। पीपल विल रीड व्हाट इज रिटन। मेक इट अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी हुई हो, रीडेबल टेक्स्ट लगा हुआ हो, उसमें कोई वेंडिंग्स किस्म के ना लगे हुए हो, उसमें टाइम्स न्यू रोमन एरियल को आप प्रेफरेंस दी जाती है इंडस्ट्री में। ये दो फॉन्ट्स हैं जिनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और भी बहुत से होंगे, बट एरियल टाइम्स न्यू रोमन ज्यादा यूज होता है। अपनी जो चीजें आपने की हैं उनकी उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक दो लाइनों में लिखें। रेज्यूमे एंड सीवी आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स। बहुत सी जगहों पे ये इंटरचेंजेबल है, खास तौर पे आपकी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनके लिए। आपका पेज, आपका सीवी जो है वो एक पेज से ऊपर अगर जाता है तो इट इज क्वेश्चनेबल व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस, बट यू कैन मेक इट एज गुड एज पॉसिबल। बहुत ज्यादा जम्बल्ड अप चीजें ना हो कि इधर एक कॉलम बना हुआ है, ऊपर एक और पट्टी बनी हुई है, नीचे जो है वो पिंक कलर का भी एक आपने उसका बॉर्डर दे दी है। तस्वीर आप लगाना चाहें जरूर लगाएं, नहीं लगाना चाहते इट इज नॉट मैंडेटरी। But in your professional document, if you are having your photo, it is not bad. It is not, it is never counted as bad. There is no country format in CVs or resumes. Usually resume is a shorter version, CV is the detailed version. जो terminology की अगर बात करें, maximum of 2 pages. अब एक ग्रेजुएट है, उसका मैक्सिमम 2 पेजेस पे सीवी जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स नॉट अ प्रोफेशनल प्रोफाइल, ये सीवी है जो किसी को अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक प्रिंटेड प्रोफाइल डिफरेंट हो जाता है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत विजिबल रहा। हिकमतुल्लाह मार साहब, आपने क्वेश्चन जो किया है वो फ्रैंकली मैं यहाँ पुट नहीं कर सकता। आप जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं मार्केट में, वो हर फेसबुक उठाएं, इंस्टा उठाएं, वो हर दूसरा आदमी उसको मार्केट कर रहा है। साइमा, वन लाइन, क्लोजिंग लाइन फॉर अवर यूथ इस टॉपिक के ऊपर। टाइम खत्म हो रहा है तो यू हैव टू क्लोज। आप एक एक लाइन, और फिर डॉक्टर साहब से कहूंगा कि एक लाइन में क्लोज करें टॉपिक को, ताकि फिर हमें इजाजत है। Work on developing yourself first and then go out to network. सो मच डॉक्टर साहब। टॉक टू पीपल, बी एन एक्सट्रोवर्ट। हर एक बंदा एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, बट ट्राई टू टॉक टू पीपल। लोगों से बात करें। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको शायद और ये बात करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जैसे अभी हम लोग यहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू या फिजिकली मिल के बात करें। बात करने का मकसद ये है कि यू हैव, if anything inspires you, write to those people. You might not get response from 10 people, but 11th one will respond. और वही आपकी नेटवर्किंग। टॉक टू थैंक पीपल, यू बी सो मच। थैंक ये चलिए, सॉरी सॉरी प्लीज। be mean I would say that try to connect to as many people as you want. इस नेट के इंटरनेट को अच्छे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना ज्यादा ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए, अगर आप अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं।
बी एक्सप्रेसिव जी, बी एक्सप्रेसिव। नेटवर्किंग के लिए यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव। आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, इंट्रोवर्ट हैं तो एक्सप्रेसिव इंट्रोवर्ट बने। एक एक्सप्रेसिव इंट्रोवर्ट भी एक चीज होती है, तो आप वो बने ताकि आप आगे निकलें। यू हैव टू। एक हम लोग जब वायरिंग करते थे इवन कॉर्पोरेट, उसमें हमें कहा जाता था, हम जाते थे सेशंस में, वो कहते थे आई एम हियर टू सी यू एंड हियर टू बी सीन। तो ये जरूरी होता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करें और लोगों से मिले। और सीवी और रिज्यूम में बेटर देखें, सीवी अभी बताया कि सीवी और रिज्यूम में एक ही चीज है, एक ही के दो नाम है। आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है, पर्पस देखें किसके लिए कर रहे हैं। तो किसी मुल्क का फॉर्मेट नहीं होता, ऐसी चीज हो, कंसाइज हो, लिबरेटिव हो, बहुत डिटेल ना हो, और राइट पॉइंट्स लिखें जो इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ ही हम आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं। साहिबा साहिबा, डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज अ वेरी नॉलेजेबल लाइक इनसाइट्स फ्रॉम यू। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हम आपको दावत देंगे कभी, दिस इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। ओके ओके साहब, अल्लाह हाफिज। Thank you.